Welcome back, everyone. So, after a very long time, there was some voice crackings on our video. So that's why now we have solved everything issues. Okay, so we will continue from our next session, from our continue session. Okay, so all of you, we were discussing about the relationships, types of relationships. Okay, so come to our page number. Just a second. Mm, Page number, I think 38. It is going to be load. Just a second. Okay, primary, we have already completed primary key, creating the blank database and entering the data. This chapter is has been completed already. So next chapter, working with RDBMS. Okay, filter by form we have already seen. Advanced filter we have already seen. Creating selection query design view we have already. Types of relationship. Okay. So in the previous video, I have already discussed about the types of relationship, but there was some of the issues on voice cracking. Okay, voice. So that's why I'm going to explain it once again. Okay, for mm, okay. So types of relationship. Okay, types of relationship. So all of everyone try to understand what I am going to say. Okay, just a second. Yes, that's so. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में समझिए क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जैसे हम लोग वी आर वर्किंग ऑन डेटाबेस। ओके, यहाँ पर हम लोग डेटाबेस पर काम करते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है, डेटाबेस से डेटाबेस की कनेक्टिविटी जब हम लोग करेंगे तो किस टाइप का कनेक्टिविटी होगा, वो एक तरह से टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। Okay. So I have already told you that relationship between the two tables. Okay, one table to another table. Okay, that means relationship from one data to another. One data, that means the data of a table will relates to the another data of for the of another table. Okay, so try to understand types of there are two tables that can be of three types. तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर थ्री टाइप्स का दिया गया है, वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू वन। सो ऑल ऑफ यू, only three topics we need have to understand, only understand. If you will listen clearly, then you will understand what is one to one and one to one, one to many, many to many. Okay, so one to one in the sense of we can say uh, a a customer can buy many products, that is the one to many. Okay, are you getting my point? A customer can buy many products, so here this is the relations between the customer and products. Okay, customer table and product table, and here customer can buy many products. Okay,
Customer can buy many products. Then one more example we are taking. Okay, one more example we are taking like a like we can say कस्टमर तो हो गया कस्टमर और प्रोडक्ट का हम्म, यहाँ पर ज्यादातर जो बात होगा ना वो परचेज के में ही ज्यादातर आपको केस आएगा वन टू मेनी में। और अगर देखा जाए हाँ यस ए स्टूडेंट कैन डू मेनी कोर्स। ओके ए स्टूडेंट कैन डू मेनी कोर्स तो यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल हो गया। ठीक है। और एक कोर्स टेबल हो गया तो एक स्टूडेंट क्या कर सकता है मेनी कोर्स को कर सकता है बहुत सारे कोर्स को कर सकता है हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह डेट्स इट। ठीक है इसी तरीके से वन टू वन का क्या होगा वन टू वन में क्या होगा देखिए कभी भी हम लोग इस टाइप के रिलेशनशिप में सोचते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होना चाहिए। पॉसिबिलिटी होना चाहिए जैसे कि पॉसिबिलिटी कहने का सेंस ये होता है ना कि वन टू मेनी में हम अगर सपोज कीजिए वन टू मेनी की बात करें तो यहाँ पे हम वैसा ही एग्जांपल देंगे जहाँ पर वो एप्लीकेबल हो। जैसे ए कस्टमर कैन बाई मेनी प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर हम बोल दें ठीक है एक ए पैसेंजर कैन ऑक्यूपाई मेनी सीट्स। ओके तो ये पॉसिबल है कभी भी एक पैसेंजर बहुत सारे सीट को ऑक्यूपाई कर सकता है कभी नहीं कर सकता एक पैसेंजर के लिए एक ही सीट अलॉट होगा मल्टीपल सीट अलॉट नहीं हो सकता। ठीक है तो इस केस में ये इम्प्रॉपर एग्जाम्पल हो गया ये गलत एग्जाम्पल हो गया। ठीक है तो कभी भी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं या फिर सोचते हैं तो उस परफेक्ट वे में सोचते हैं कि उसका कोई और दूसरा चांसेस ना हो सके। ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है हमारा वन टू वन में हम यही एक एग्जांपल दे सकते हैं जैसे ए पैसेंजर कैन ऑक्यूपाई ओनली वन सीट। ओके और नेक्स्ट एग्जांपल ए पैसेंजर कैन टेक ओनली वन टिकट। ओके और ओनली टेक ओनली वन सीट। ओके तो यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप का हो गया अब यहाँ पे और भी कह सकते हैं लाइक सपोज कीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल यस ए टीचर कैन टीच ओनली वन क्लास एट ए टाइम। ओके ए टीचर कैन टीच ओनली वन क्लास एट ए टाइम। मल्टीपल क्लास को तो वो हैंडल नहीं कर सकता मल्टीपल क्लास को तो पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है वो एक बार में एक ही क्लास को पढ़ा सकता है तो यहाँ पर भी वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। ठीक है वहाँ यहाँ पर भी वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है मेनी टू मेनी। ठीक है मेनी टू मेनी तो मेनी टू मेनी का एग्जांपल हम लोग देखेंगे जैसे मेनी टू मेनी आप लोग भी थिंक कर सकते हैं जैसे मेनी टू मेनी स्टूडेंट्स कैन डू द मेनी कोर्सेस। ओके मेनी स्टूडेंट्स कैन टेक द मेनी कोर्सेस कह सकते हैं मेनी स्टूडेंट्स कैन टेक द मेनी कोर्सेस। ओके जैसे कि आप हम लोग सपोज कि एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर उस एडमिशन लेने गए तो वहाँ पर फिजिक्स भी पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री भी पढ़ाया जा रहा है और मैथ भी पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर हम मेन बहुत सारे स्टूडेंट जो आ रहे हैं बहुत स्टूडेंट बहुत सारे आ रहे हैं एडमिशन के लिए। अब वहाँ पर वो मल्टीपल कोर्स को मतलब बहुत सारे कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है चलिए आइए देख लेते हैं बुक में क्या दिया है। ठीक है जस्ट अ सेकेंड। ओके सो वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके वन टू मेनी रिलेशनशिप this means one record in one table has many matching records in the other related table. Okay so in the many one to many relationship in one to many relationship इसमें होता क्या है। ठीक है कि एक टेबल का जो रिकॉर्ड है ठीक है एक टेबल का रिकॉर्ड जो है एक टेबल का रिकॉर्ड मल्टीपल टेबल में मैच कर रहा है तो उसको बोलते हैं वन टू मेनी। ठीक है वन टू मेनी। ठीक है ना one is denoted by number one and many is denoted by number infinite।
अब मेनी का जो डिनोशन होता है वो इन्फिनिटी, ये याद रखिएगा। ठीक है। मेनी इज मेनी इज डिनोटेड बाय infinity sign. Okay. In graphical form, entities or objects are denoted by boxes, and events or transactions or are denoted by diamonds. Okay. तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है। टू entities always connect through the an event, such graphical representation called entity relationship diagram। तो आगे हम लोग को ये एक ER डायग्राम भी पढ़ना है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल, वन ऑथर कैन राइट मेनी बुक्स। ओके, तो ये भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर डायमंड की जो बात हो रही थी, तो कभी भी हम लोग ईआर डायग्राम जब बनाते हैं ना, ठीक है, तो ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं? जो आपका एक्टिविटी, जो इवेंट होता है, उसको हम लोग, ये हमारा डायमंड बॉक्स हुआ, ठीक है, इट इज आवर डायमंड बॉक्स। तो जो भी इवेंट होता है, जो भी एक्शन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डायमंड बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम लोग दो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, लाइक एज ओवल टाइप का ही बॉक्स बनाते हैं। ठीक है। और उसमें वन टू मेनी या मेनी टू वन को इंडिकेट करते हैं। तो याद रखिए, कभी भी आपको एग्जाम्पल, आपको ये एग्जाम्पल, ये जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बनाने एग्जाम में हमेशा आता है। ये एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है। रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जो है ना, वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको आप इजीली मत लीजिए, और हल्के भी में भी मत लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट। ओके। सो अब देखिए, इस मेन जो आप इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हो ना, अगर आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं, तो आपको टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। अब सपोज ये वन टू मेनी की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर देखिए, ऑर्डर में लिखा हुआ है वन, मतलब एक ऑर्डर, एक ऑथर क्या हो सकता है, राइट्स बुक। राइट्स में बुक के पास देखिए एक इंफिनिटी का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, मतलब वन ऑथर कैन राइट मेनी बुक्स। ओके, इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है। वन ऑथर कैन राइट मेनी बुक्स। ओके, यही होता है वन टू मेनी रिलेशनशिप्स। अब देखिए, वन बुक कैन बी इशूड टू वन स्टूडेंट। ओके, once again, ओके, once again, फिर से समझिए। वन बुक कैन बी इशूड टू वन स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे किस कैसा रिलेशनशिप हो गया, वन टू वन का रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है ये। ठीक है, यहाँ भी इन्फिनिटी सिंबल है। तो देखिए, मेनी स्टूडेंट कैन परसू मेनी कोर्स। ओके, अगेन, मेनी स्टूडेंट कैन परसू मेनी कोर्स। ओके, इसको इस तरीके से आप समझिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का बात आ गया। तो अगर आपको, आप खुद से भी एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कस्टमर वन टू मेनी का। तो कस्टमर कैन बाई, ओके, कस्टमर कैन बाई मेनी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसको हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, जस्ट देखिए। हम्म, ये हो गया हमारा कस्टमर के लिए, कस्टमर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा बड़ा हो गया, अभी भी बड़ा है, एक सेकेंड। कस्टमर, ओके, कैन बाई, कैन बाई, और उसके बाद इसको हम प्रोडक्ट इंडिकेट कर देंगे यहाँ पे,
इस तरीके से। ओके, अब इसको रिलेशनशिप इंडिकेट कर देंगे। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के लिए कस्टमर, ए कस्टमर कैन बाई मेनी प्रोडक्ट। ओके, तो इससे आपको क्या हुआ, ए कस्टमर कैन बाई मेनी प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा वन टू मेनी का रिलेशनशिप। ओके, वन टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया। तो इसी तरीके से हम मेनी टू मेनी का भी इंडिकेट कर सकते हैं, वन टू वन का भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं वन टू वन का। ठीक है, जैसे एक ले लेते हैं, लाइक स्टूडेंट। स्टूडेंट, ओके, कैन स्टडी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। चला गया, मतलब समझिए कि एक स्टूडेंट एक बना ही देते हैं। स्टूडेंट कैन स्टडी एट ए टाइम सब्जेक्ट। ये हमारा डायमंड बॉक्स हो गया। ये हमारा, इसको इंडिकेशन कर देते हैं। और यहाँ पे हम देते हैं वन वन, वन टू वन का रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ए स्टूडेंट कैन स्टडी एट ए टाइम वन सब्जेक्ट। ओके, मतलब एक स्टूडेंट एक बार में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। आप, हम लोग कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में हम फिजिक्स भी लेकर के पढ़ लिए, केमिस्ट्री भी लेकर के पढ़ लिए, मतलब एट ए टाइम। ओके, एट ए टाइम मतलब एट द सेम टाइम हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक बार में पैरेलली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हम लोग को देना पड़ता है। जैसे कि पहले हम सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैथ्स पढ़ लिए, उसको पढ़ने के बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ सकते हैं, उसके उसको पढ़ने के बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ही कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन एक साथ मल्टीपल सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा जा सकता। तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये हमारा वन टू वन का रिलेशनशिप हो गया। जैसे फिर से समझिए, वन स्टूडेंट कैन स्टडी एट ए टाइम वन सब्जेक्ट, दैट इज द वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, दैट इज द वन टू वन रिलेशनशिप। सो यही है आपका वन टू वन रिलेशनशिप। आप इसको थोड़ा सा पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके, टाइप्स। चलिए, नेक्स्ट मेरा आता है आपका चैप्टर, अब यहाँ से खत्म हुआ। ठीक है, इसको आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना क्या होता है वन टू वन रिलेशनशिप में, वन टू मेनी रिलेशनशिप में, और मेनी टू वन रिलेशनशिप में। और अगर आप इतना समझ जाते हैं, ठीक है, ये समझ जाते हैं, तो अगर ये आप समझ जाते हैं ना, तो ये आपको डायग्राम भी आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है,
डायग्राम भी आपको इजीली बन जाएगा 1 to 1 का, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। प्राइमरी की ये पहले ही बताया हुआ है, यूनिक। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस ईयर में कुछ स्टूडेंट, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, ठीक है, टॉप 10 को छोड़कर बहुत सारे स्टूडेंट मिसमैच किए हैं। क्या, कभी भी प्राइमरी की वीवीआई है, एग्जाम में वेरी वीवीआई क्वेश्चन है ये प्राइमरी की। तो याद रखिएगा, प्राइमरी की का कभी भी डिफिनेशन करना हो तो प्राइमरी की में यूनिक की जरूर आइडेंटिफाई करिए। मतलब ये क्या करता है, यूनिक डेटा को स्टोर करता है प्राइमरी की। वहां पर मतलब डुप्लीकेट डेटा को हम लोग नहीं स्टोर कर सकते। प्राइमरी की रिप्रेजेंट्स द यूनिक डेटा। ये यूनिक वर्ड आपको मैंडेटरी है कि आप ऐड करना, ठीक है, क्योंकि यही प्राइमरी की का यही एक पावरफुल वर्ड है जो प्राइमरी की को रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत कम ही चांस होता है कि आता है, लेकिन आ जाता है। 100 में 10% चांस होता है, रिलेशनशिप तो आएगा ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर है। तो आंसर, क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिया जा चुका है। आप लोग चाहें तो स्मिता मैम से ले सकते हैं, उनके पास कंप्लीटली आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ आंसर अगर टफ हो या फिर ज़्यादा बड़ा हो तो आप लोग सेंड करके हम उसको अच्छे से मतलब सॉर्ट करके भी दे देंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। If you will tell for the next video, then I will make. Otherwise, I will stop to now. Okay. आपको अगर अगर लगता है कि आगे और भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग सेंड कीजिए चैप्टर नंबर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और जहाँ पर भी आपको डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।